مجموعی بے شرم بے حیا قوم ہے. ہمارے اندر شرم نہیں ہے، حیا نہیں ہے، غیرت نہیں ہے، دانش نہیں ہے، سوچ و فکر نہیں ہے، سنجیدگی نہیں ہے. ابھی رونے کا مقام ہے لیکن رونا نہیں آتا ہے. جس قوم کی تعلیمی حالت اس قدر پستی میں جا چکی ہو کہ مقررین گا گا کر اسے چندہ مانگتے ہیں. ابھی مجھ سے پہلے مولانا حضرت علی صاحب ایک قرآن کی قیمت آپ سے مانگ رہے ہیں، ایک قرآن کا ہدیہ مانگ رہے تھے. بتائیے ہمارا مزاج کس قدر بگڑ چکا ہے. ہم کھڑے کہاں ہیں؟ کبھی ہم نے سوچا کیا قرآن کی قیمت مانگنے کی ضرورت پڑے گی اس قوم کے پاس جس کی ہدایت کے لیے خود قرآن کریم کو اللہ رب العالمین نے نازل کیا، جس قرآن کریم پر عمل پیرا ہو کے صحابہ کرام دنیا کے معزز ترین قوم بن گئے، جس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. آج جو پستی ہے، ذلت ہے، ادبار ہے، یہ صرف اور صرف قرآن سے ہمارا رشتہ کمزور ہونے کی وجہ سے. تو اب بتائیے میں اپنی بات اس قوم کے سامنے کہاں سے شروع کروں؟ بحیثیت قوم جب بھی میں سوچتا ہوں تو مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ میں اس کو الفاظ کا جامع نہیں پہنا سکتا. میں جب اپنے قوم کے سامنے گفتگو کرتا ہوں تو کوشش یہی کرتا ہوں کہ آپ کو تکلیف پہنچاؤں، آپ کو شرم دلاؤں، آپ کے اندر غیرت بیدار کروں، اس لیے کہ بے غیرتی کے ساتھ کوئی قوم دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتی. بے حیائی کے ساتھ کوئی قوم عزت حاصل نہیں کر سکتی. اور اللہ رب العالمین اسی قوم کو دنیا کے اندر ترقی دیتا ہے جو قوم بحیثیت مجموعی تعلیم کے سلسلے میں سنجیدہ ہوتی ہے. آپ میں اور ہم میں تعلیم کے تئیں کتنی سنجیدگی ہے، کبھی آپ نے غور کیا؟ جتنے جلسے شیر شاہ آبادی بھٹیا کے ہوتے ہیں ہر جلسے میں بھیک مانگا جاتا ہے. 100 200 150 500 1000 2000 4000. ایسا کیوں؟ تعلیم کے میدان میں خرچ کرنا یہ ہمارا بنیادی فریضہ ہے. قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اسی آیت کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. جب اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنے کا، پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا اور اس ارادے کا اظہار فرشتوں کے سامنے کیا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے کہا کہ میں روئے زمین پر اپنا جانشین پیدا کرنا چاہتا ہوں، اپنا خلیفہ پیدا کرنا چاہتا ہوں، تو فرشتوں نے کہا تھا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اے بارے اعلان کیا تو ایسی قوم کو پیدا کرنا چاہتا ہے؟ کیا تو ایسی قوم کو روئے زمین پر برپا کرنا چاہتا ہے؟ مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، جو روئے زمین پر جا کر فساد برپا کرے گا، خون بہائے گا، آپس میں فتنہ و فساد برپا کرے گا، ایک دوسرے کے جان کے درپے ہو جائے گا. نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. رب العالمین اگر بنی نوع انسان کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ تیری تسبیح بیان کرے، تیری تحمید بیان کرے، تیرا شکریہ ادا کرے، تیری بزرگی اور برتری کو تسلیم کرے، تو یہ سارا کام تو ہم خود کر سکتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم لوگ نہیں جانتے. آگے فرمایا وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين. اور پھر اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد اسے تمام چیزوں کا نام سکھایا اور فرمایا فرشتوں سے کہ تم ان چیزوں کا نام بیان کرو، بتلاؤ. فرشتوں نے معذرت کر لی کہ ہمیں ان چیزوں کے نام نہیں معلوم. پھر اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا، حضرت آدم علیہ السلام نے تمام چیزوں کے نام فر بتا دیے. تب اللہ رب العالمین نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو روئے زمین پر پیدا کرنے کا یہی مقصد ہے. اس میں اللہ رب العالمین نے حضرت آدم
करने का हुक्म न देता। फरिश्तों को हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा कराया। ये इस बात की दलील है कि कौमें वही बुलंद होगी, कौमें वही सरबुलंद होगी, कौमें वही इज्जत पाएंगी, कौमें वही तरक्की करेंगी जो इल्मी एतबार से तरक्की याफ्ता होंगी। हमारा मुआशरा किसी भी मैदान में तरक्की याफ्ता नहीं है। तालीम के सिलसिले में हमसे ज्यादा बेगैरत कोई कौम ही नहीं है। तालीम के मैदान में 10 रुपये खर्च करते हुए जान निकल जाती है। एक मदरसा चलाने के लिए, चंदा करने के लिए कितना पापड़ बेलना पड़ता है। मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है? इल्म ही तो दिया जाता है, कुरान और हदीस की तालीम ही तो दी जाती है। क्या कुरान और हदीस की तालीम को फरोग देना या हमारा आपकी और आपका बुनियादी जिम्मेदारी नहीं है? क्या इस मैदान में है बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं लेना चाहिए? कब तक हम दूसरों के सामने दस्ते सवाल दराज करते रहेंगे? कब तक हम दूसरों से भीख मांगते रहेंगे? दुनिया भीख देने वाली कौम को कभी इज्जत की नजर से नहीं देखती। हम दूसरों के ऊपर, दूसरों की तरफ नजरें गाड़े रखते हैं। कहीं से कोई चंदा आ जाए, कहीं से कोई हदिया आ जाए, कहीं से कोई सदका और खैरात आ जाए, सऊदी अरब की तरफ, कुवैत की तरफ, कतर की तरफ, दुबई की तरफ नजरें उठाए देखते हैं। कहीं से कोई मस्जिद मिल जाए, एक मस्जिद बनाने की भी ताकत हम खो बैठे हैं। हमारी मस्जिदें भी अब दूसरों के रहमो करम के ऊपर बना करती है। अगर सऊदी दुबई वाले चंदा न दे तो ये आलीशान मस्जिद न बने। मस्जिद बनाने की जिम्मेदारी इलाका वालों की नहीं है। मस्जिद भी खैरात के पैसे से बनते हैं। शर्म की बात तो यह है, मदरसे भी जो छोटे मोटे चलते हैं वो भी खैरात के पैसे से चलते हैं। आप तरक्की याफ्ता बनेंगे? मेरे भाइयों, ये मुमकिन ही नहीं। लिहाजा अपने गरीबान में झांकिए, आप कहां खड़े हैं, कर क्या रहे हैं? दुनिया में वो कौमें जो तालीम के सिलसिले में गैर संजीदा है, कान खोल कर सुन लीजिए, कभी वो कौम इज्जत नहीं पा सकती। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कभी कहा था, ये वो मुल्क है जहां दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ी कौम के लोगों को तालाब में पानी पीने की इजाजत नहीं थी। ये वही मुल्क है जिस मुल्क में दलितों को और पिछड़े तबकात के लोगों को इल्म हासिल करने की इजाजत नहीं थी, बल्कि यहां तक नौबत आ पहुंची थी, अगर कोई दलित मजहबी किताब को या वेदास को अपने कानों से सुन ले तो उनको सजा ये दी जाती थी तो उनके कान में सीसा पिलाकर, सीसा को पिघलाकर उनके कान में डाला जाता था। ये वो समाज था। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इनकलाब पैदा किया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने समाज के दबे कुचले पिछड़े तबका को आगे बढ़ाया और उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें इज्जत चाहिए तो तालीम हासिल करना पड़ेगा। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, अगर किसी कौम के अंदर 30 वकील, अगर किसी कौम के अंदर 20 डॉक्टर, अगर किसी कौम के अंदर 10 इंजीनियर पैदा हो जाए तो लोग उसकी तरफ नजर उठाकर देखना तो दूर की बात, उसकी तरफ नजर उठाकर नहीं देख सकते। क्या आज हमारी कौम में इस तरह के लोग हैं? आज देखिए दलितों की हालत। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, बाकायदा सच्चर कमेटी डॉक्टर राजेंद्र सच्चर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कांग्रेस के पीरियड में कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की हालत इस मुल्क के दलित, आदिवासी, पिछड़े तबकात के लोगों से ज्यादा बदतर है। पता ये चला कि आजादी के 70-72 साल के अंदर हम इस मुल्क के हुक्मरान हुआ करते थे। इस मुल्क में मुसलमानों ने 800 साल, तकरीबन 800 साल हुकूमत की और 800 साल हुकूमत में हमारी तालीमी मैदान में कोई तब्दीली नहीं आई। 72 साल के अंदर जो कौम इस मुल्क का हुक्मरान थी वो दलितों से, आदिवासियों से और पिछड़े तबकात के लोगों से ज्यादा भी निचले दर्जे में पहुंच चुकी है। और जो कौमें कल जलील थी, जिनको पढ़ने की इजाजत नहीं थी, जिनको पानी पीने की इजाजत नहीं थी, जिनके साए से लोग नफरत किया करते थे, जिनके पीछे झाड़ू बांधा करते थे, जिनके सामने थूकने के लिए हांडी और कटोरा बांध दिया जाता था, इसलिए कि समाज में, इसी मुल्क में आदिवासियों को, दलितों को अछूत समझा जाता था। आज वो कौम हमसे बहुत आगे जा चुकी है। उनके यहाँ डॉक्टरों की भरमार है, इंजीनियर्स की भरमार है, वकीलों की भरमार है, लेकिन हमारे पास क्या है? कितने डॉक्टर हैं हमारे समाज में? बताइए, कितने इंजीनियर हैं हमारे समाज में?
कितने सरकारी अफसरान हैं हमारे समाज में, जलसों की कमी तो नहीं है। हर साल जलसे होते हैं, हजारों की तादाद होती है, बड़े बड़े उलमाए किराम आते हैं, हजारों की फीस दी जाती है, 5,000 से लेकर 50,000 तक फीस देने वाले उलमाए किराम हम लोग आते हैं। लेकिन तब्दीली कहां आ रही है? क्यों तब्दीली नहीं आ रही है? तब्दीली ना आने की बुनियादी वजह यह है कि हमारा ज़हन दिमाग तालीम की संजीदगी के सिलसिले में आगे हो चुका है। दोस्तों, मेरे पास चूंकि वक्त बहुत कम है, मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन मिर्जादपुर, यह इदारा जहां से मैंने तालीम हासिल की है, आज जो कुछ भी हूं शायद इसी मदरसे का देन है। यह मदरसा मैं अपनी जिंदगी में इसे बुनियाद का पत्थर समझता हूं और मेरी जिंदगी का यह पहला मदरसा है कि मैं अपने घर से दूर रहकर यह तालीम हासिल किया। लेकिन आज से 20 साल पहले मदरसा जैसा था आज भी वही है। आप क्यों नहीं सोचते हमारे पास पैसों की कमी है? आमतौर पर जब भी लोगों के दरमियान गुफ्तगू की जाती है, लोगों को शिकायत होती है कि कहां पैसा है, खर्च कहां से करेंगे, इतने अच्छे अच्छे मकान कहां से बन जाते हैं जब पैसे नहीं है। आलीशान मकान लोगों के पास है और शादी ब्याह आजकल बताइए कोई ऐसी शादी है जिसमें 1,00,000-1,50,000 रुपए खर्च ना होता हो? मामूली से मामूली शादी में 1,00,000-1,50,000 रुपए खर्च करना आम सी बात है। तो फिर जो कौम घर बनाने में, जो कौम बेहतर से बेहतर शादी करने में संजीदा हो, उस कौम में जहेज तो फरोग पाएगा, आलीशान मकान तो बनेगा, लेकिन मदरसे की हालत बदतर होगी। मैं 2-3 बातें आपके सामने बयान करना चाहता हूं। अगर इन बातों पे अमल कर ली जाए तो मुझे उम्मीद है, बल्कि 100% उम्मीद है कि किसी भी इलाके में मदरसा माली बदहाली का शिकार नहीं होगा, बल्कि बड़ी आसानी के साथ मदरसे को चलाया जा सकता है और बगैर भीख मांगे चलाया जा सकता है। लेकिन शर्त यह है कि नीयत साफ हो, दिल के अंदर खुलूस है, अना की कुर्बानी दी जाए। इसलिए कि आज के मुआशरे की सबसे खतरनाक बीमारी और बुराई अना है। मैं, हर शख्स मैं की बीमारी में मुब्तला है। जो मैं जानता हूं वो सबसे अच्छा, जो मैं समझता हूं वो सबसे बेहतर, जो मैं कह रहा हूं वही हरफ आखिर, जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूं वही सबसे अच्छा रास्ता। ये जो बीमारी है ये कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक बीमारी है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिरऔन को इसी मैं की वजह से तबाह बर्बाद किया था, नमरूद को इसी मैं की वजह से तबाह बर्बाद किया था, कारून और हामान को इसी मैं की वजह से बर्बाद किया था, और आज उम्मत मुस्लिमा इसी मैं का शिकार है। अगर मैं की कुर्बानी कर दी जाए और मैं का कत्ले आम कर दिया जाए और खुलूस के साथ, नेक नियति के साथ, अच्छे इरादे के साथ किसी इदारे को चलाने का आज़्म मुसम्मम कर लिया जाए तो किसी भी इलाके में दीनी मदरसा बदहाली का शिकार नहीं होगा। वो तरीका क्या है? बहुत आसान तरीका है। रोजाना हम में से हर शख्स 20, 25, 30 रुपए आसानी से खर्च कर देता है। कोई एक आदमी बताइए इस महफिल के अंदर जिसका रोजाने का जेब खर्च 50 रुपए से कम हो। अगर 50 रुपया यौमिया जोड़ते हैं तो माहाना तकरीबन 1500 रुपये बनता है। कौन सा ऐसा आदमी है जिसका माहाना खर्च 1500 रुपया से कम है? कोई है? मुझे नहीं लगता है कि एक भी आदमी इस महफिल में हाथ खड़ा करके ये बता सके कि मेरा माहाना खर्च 1000-1500 से कम है। हर एक का माहाना खर्च 1000-1500 से ज्यादा है। अब आप ये